The concept of past life karma and its impact on the present life is a belief that has prevalent in many ancient cultures and religions for centuries. It suggests that our actions and behaviors in the previous life determines our current circumstances and experiences. Welcome to our podcast on past life karma and current life. In this episode, we will explore the concept of karma and its impact on our present. Join us as we get deeper knowledge into our past and present lives. We have Poonamji with us who is going to share her knowledge and her experiences about karma in detail. Great. I'm so grateful to speak to you once again, Garima, and we're going to keep this episode a little interesting. Yes. I'm going to speak both in English and I'm going to speak in Hindi. And the concept of karma is too vast. Okay, the Buddhism have understood the concept of karma differently. Jainism treats karma differently. We Hindus in Sanatan Dharma, karma is seen as a little differently from the rest. Uh, what I'm going to talk today is mostly from my own understanding of karma and my perception around it. Okay, so people might agree, people might disagree, and if they disagree, they can always, they're most welcome to get back to me with their feedback. And if they agree with me, they can also comment here. Okay. Yes. So Garima, before we go ahead, I just wanted to ask you this question in return. What is your understanding of karma? Because you're a millennial, you are a teenager, Yes. okay? Yes. And teenagers have a different understanding of karma. And let's take it up from there. Yes, ओके Garima. सो मतलब जैसे हमारी पहले कॉन्वर्सेशन हो चुकी थी आई टोल्ड यू दैट कर्मा आई थिंक द वेरी बेसिक थिंग इज व्हाट वी नो लाइक द वन सेंटेंस की जो मतलब आप करते हो दैट इज व्हाट यू गेट बैक इन रिटर्न आई थिंक वी just know karma to that extent and nothing beyond that. So I think I would really like to know what exactly karma is. Okay. देखिए हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बिकॉज आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजी सो इट इज सेड कि लाइक जो इंसान का जन्म होता है वो स्पेसिफिक स्टार्स एंड नक्षत्र के अंडर में होता है एंड द सोल डिसाइड्स कि वो कौन से नक्षत्र में और कौन से प्लैनेटरी पोजीशन में जन्म लेगा टू फुलफिल अ स्पेसिफिक टास्क इन दिस पर्टिकुलर बर्थ. ठीक है, ये होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन संचित कर्मा. अगर हम संचित कर्मा की बात करें, संचित कर्मा इज सेड टू बी इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगेन इज सेड टू बी दैट कर्मा जो आपने पिछले कई जन्मों से एक्यूमुलेट किया है अपने बॉडी में. ओके, व्हिचएवर यू हैव लर्नड एंड लाइक व्हाटएवर यू हैव सीन इन योर लाइफ दैट इज कॉल्ड एज संचित कर्मा. अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम थोड़ा सा वेदास में जाए, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट वेदास, नाउ वेदास को कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर पाया है टू बी वेरी ऑनेस्ट. कितने भी लाखों करोड़ों स्कॉलर्स बने हो, लेकिन वेदास का जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों के पास में है. ठीक है, तो उसमें जो ऋग्वेद जो कि सबसे ओल्डेस्ट वेद है, उसमें कर्म और रीइंकार्नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड वेरी डिफरेंटली. ओके, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड सो डिफरेंटली एंड दे मोस्टली associated the understanding of reincarnation and karma with a life which is coming next to this one, this next to this birth. Okay. On the other hand, हम लोग अगर उपनिषद में देखें तो उपनिषद only speaks about कर्म योग. उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो भागवत गीता है, ठीक है, जहाँ पे कर्म की बात की जाए. In very simple language, science में अगर हम देखें तो the normal meaning of karma is a repercussion of every action, which is the cause and effect. ठीक है. But karam means what? Karam means your work, your responsibility, your duty, and your perception of you as a being. आप जो सोचते हो, वो आप बनते हो, वो आपका कर्म है. आप अपना एक पर्पस चूज करते हो. The soul decides its purpose and lives that purpose in a particular birth. That is karma. ठीक है. अब अगर इसको थोड़ा सा वाइडेंड if we try to explain this more in a proper way, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कर्म का मतलब हमारा कार्य है towards a soul mission, towards a soul goal. ठीक है, आप एक पाथ फॉलो करते हो towards your destiny which is very fixed. कहते हैं कि हमारा जो नसीब होता है वो बहुत फिक्स्ड होता है. It is very much driven and it is
we are very much, we are like non-doers. Basically, we are non-doers, right? We just have that one mission, we have that one goal, we have that one path, okay, to take towards that particular destination. Destination हमारा fix है, लेकिन हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं. मुझे अगर आज गरिमा के पास हैदराबाद पहुंचना, आई कैन टेक अ फ्लाइट, आई कैन टेक अ बस, आई कैन टेक अ कार आल्सो टू कम हियर. दैट इज माय फ्री विल, दैट इज आल्सो माय कर्मा. कि मैं कौन सा रास्ता अपना रही हूँ. ठीक है, व्हाइल इवन ड्राइविंग टुवर्ड्स यू, आई माइट टेक अ बम्पी रोड, आई माइट टेक अ सॉफ्ट स्मूदर रोड, है ना. So this is again my karma. This is again I am deciding it. Okay, this is the decision that my soul takes. कुछ चीजें होती हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं. ऑफ्टन ये चीज देखी गई है कि जब भी इंसान व्यक्ति दुखी होता है, तकलीफ में होता है, तो उसको ये बोला जाता है, अरे आपकी तो संचित कर्मा खराब रहे होंगे, इसलिए आप इतने सफर कर. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर द डिसाइडर्स. हमने जब इस जन्म में जन्म लिया है तो हमने डिसाइड किया है कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारा भाई बहन कौन होगा, हम कौन सा प्रोफेशन चूज करेंगे, ताकि जो हमारी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम इस जन्म में पूरा कर सके. कभी कभी जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमको तकलीफ दे जाते हैं, why do we meet them? It is only and only to teach us the lesson, the right kind of lesson. And हम काफी बार ड्रिफ्ट हो जाते हैं हमारे सोल मिशन से, काफी बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. वो हमको रास्ता बैक टू दैट मेन मिशन तक लेके जाने के लिए, ठीक है, हम we meet all these sorts of people, all these sorts of negative people. So basically, karma is not just the repercussion of your action, but karma means the path that takes you to your real being, your true self, your true nature, your responsibility, and your duty, and towards your soul purpose, to end the soul contract with the innumerous number of people that you're meeting in your life, complete your cycle of death with them, and move in the path of divinity. That is karma. ठीक है, उस रास्ते में हमने काफी चीजों का डेफिनेशन बना लिया है. अब अद्वैत वेदांता स्पीक्स अबाउट नॉन डुअलिटी. अगर नॉन डुअलिटी सच्चाई है तो फिर karma का कॉन्सेप्ट कैंसिल हो जाता है ना. if there is like nothing which is right and wrong in this world, and the whole concept of karma ends here. And if the concept of karma ends here, then what is the use of the birth of God? फिर तो राम भगवान का भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया, कृष्ण का भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया, राइट? So all these theories are basically the perception of mankind. किसी ने नॉन डुअलिटी को definition दे दिया, and they've called it the practical Vedanta. Somebody has said that karma is the only concept, like Buddhism and Jainism, they strictly follow the karmic rules, and they focus more on the suffering part. And we as humans, we are trying to balance ourselves in between, not understanding either of the concepts. Basically, अगर हम इस चीज को बहुत सिंपल टर्म्स में फिर से मैं इन लेमैन्स लैंग्वेज अगर एक्सप्लेन करूं, तो definitely yes, there is a non-duality. There is nothing right or wrong in this world, which is so true. Right and wrong is a condition that a human has laid. A human का दिमाग का वो perception है कि ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है. परंतु to maintain that balance in our nature, into our environment, this bifurcation is equally important. Hence, even though it is a non-dual science, the karma is a non-dual science, or Vedanta is a non-dual science, we still are like we are in that web of karma. ठीक है, सही और गलत बहुत जरूरी है हमारे आंखों में वो डेफिनेशन का, so that we move and do what our soul mission is. And you being a human being, आप नॉर्मल इंसान है. नॉर्मल इंसान क्या करता है? हम
जिंदगी भर तो सही काम नहीं कर सकते, कभी कभी तो हमने गलतियां भी करी है, राइट? सो वी आर एन एमलगेशन ऑफ बोथ दीज कर्मास। मे बी दैट वो गलत काम जो हमारे नजर में गलत है, वो हमसे करवाई गई हो फॉर समथिंग बेनिफिशियल दैट विल कम इन द फ्यूचर, मे बी टू टीच अस अ बेटर लेसन, मे बी टू accomplish a certain role in somebody else's life. तो ये सारा सब कुछ जो है वो हमारा कर्म बनते हैं। जी गरिमा। आई थिंक ये सुनने के बाद मेरे मन में 2 क्वेश्चंस आए हैं। एक हाँ, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग बोलते हैं कि 7 टाइम्स वी रीबर्थ, तो वो 7 times? वी रीबर्थ लाइक आफ्टर डेथ, Okay. हम्म। वो हमारे आई मीन कर्मा पे बेस्ड होता है कि हम वो जन्म में क्या करते हैं, या मैंने ये भी सुना है कि मतलब जो आप इस जन्म में करते हो वो आप इस जन्म में ही सह के जाते हो। तो आई मीन व्हाट एक्चुअली हाउ डज इट वर्क कि इसी जन्म में हमको वो पनिशमेंट या वो मिल जाता है जो हम करते हैं, या हम रीबर्थ लेते हैं एंड देन वी हैव टू यू नो करेक्ट द थिंग्स वी हैव डन रॉन्ग। Okay. Understand this. This is again a little deeper. I'm going a little deeper. ठीक है? हमारा ultimate goal जो होता है, ultimate destiny जिसको हम कहते हैं, that is to merge Yes. with the ideal personality, the ideal energy, ठीक है, the deity, और हम बन जाते हैं ब्रह्मांड, because we are already an अंश of ब्रह्मांड, so we are ब्रह्मांड as humans. But what we have forgotten as humans is that we are gods. We are Brahman ourselves. We are the ansh of this entire universe. We are a part of this universe. ठीक है, we have forgotten this completely. अब आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू सेइंग अबाउट 7 lives, आई विल स्पीक अबाउट लाइक द सोल माइट हैव n नंबर ऑफ lives. ठीक है? तो जो सोल होता है, अगर आज मैंने इस मिशन में, इस सोल मिशन में, मतलब इन दिस बर्थ मैंने डिसाइड किया है दैट आई एम गोइंग टू मेक 11 आश्रम्स, ये मेरा सोल मिशन है, ठीक है? अब मैं वो कैसे बनाती हूँ, अच्छे कर्म करती हूँ, बुरे कर्म करती हूँ, किसी के साथ चोरी करती हूँ, डकैती करती हूँ, लोगों का अच्छा करती हूँ, सब कुछ करके मैंने वो आश्रम बना लिए, ठीक है? दैट इज डन, दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर। ओके, अब मैंने अगर अच्छे कर्म किए हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैंने बहुत लोगों की सेवा करी है, मैंने बुरे कर्म करने के बाद अच्छे कर्म कर लिए, ठीक है? यहाँ पे मेरा गोल खत्म हो जाता है ऑफ एस्टैब्लिशिंग दी द आश्रम। ओके, अब अगला जन्म जो मेरा होगा, वो अगला जन्म मेरा ये हो सकता है कि अब मैंने आश्रम बना लिए, मैंने लोगों की सेवा कर ली है, अब माय टर्न इज टू बिकम स्पिरिचुअल एज एन इंडिविजुअल, मैं अपने आप पे काम करूंगी। तो ये जो पिछले जन्म का कर्मा हमने पिछले जन्म में पूरा कर लिया, अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे हो, अपने 12 आश्रम का प्रॉमिस करके आए हो, 11 ही बना पाए हो, तो वो पेंडिंग कर्मा रह गया, एक आश्रम आप इस जन्म में बनाओगे, ठीक है? अगर वो पिछले जन्म में आपने पूरा कर लिया, ऑल 11 आश्रम, 12 आश्रम आर डन, तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे इस बर्थ में नहीं होगा। इन दिस बर्थ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर इंडिविजुअल ग्रोथ। ये आपका इस जन्म का मिशन हो गया कि आपके अपने इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ पे आपको फोकस करना है। अब इंडिविजुअल फोकस करने के बाद में अगर लाइक you're proceeding and like you're growing and you're like meditating, you're doing everything, अब आपने पिछले कितने जन्म में कोई गलत काम किया, किसी जानवर को मारा था to establish an आश्रम, तो वो आपके लिए इस जन्म में फिर एक हिंड्रेंस बनेगा। यहाँ पे आपने कर्म काटे, फिर आप ग्रो करोगे, ग्रो करोगे, ग्रो करोगे। पिछले जन्म में किसी इसमें आपने किसी को मर्डर किया था, अब जस्ट गिव एन एग्जांपल, तो आपने किसी को फिर वापस वो एक हिंड्रेंस बनेगा, वो आप कर्म काटोगे, उसमें दुख झेलोगे, सफरिंग्स करोगे, लेकिन वो कर्म काटोगे आप, फिर उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप यू विल मूव इन दैट लैडर, ठीक है? Until unless you do not become spiritually awakened. तो ये ऐसे वर्क करता है ये चीज। ओके, तो मतलब अगर हमने पास्ट लाइफ में कुछ बहुत नेगेटिव काम करे हैं, तो हम प्रेजेंट लाइफ में वो ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ओवरकम ऐसे होता है कि एक कार्मिक नॉट बनता है आपके सोल के साथ में, दैट कार्मिक नॉट नीड्स टू बी ब्रोकन।
एंड अगर आपको, मैंने पिछले बार भी आई थिंक वी हैड दिस डिस्कशन ऑन कुंडलिनी अवेकनिंग, राइट? तो कुंडलिनी क्या होता है? कुंडलिनी इज दैट एनर्जी, दैट प्राणिक शक्ति व्हिच इज अंडरलाइंग, मतलब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे होता है, ठीक है? दिस कैरीज ऑल योर कर्मास थ्रू आउट योर लाइफ का, जो भी आपने लर्निंग्स किए हैं, जो भी चीजें अच्छी चीजें लेकर आप आए हो, जो भी अपने संचित कर्मा है टू कन्वर्ट इनटू प्रारब्ध ऑफ कोर्स, तो वो सारा एक्यूमुलेटेड होता है into that kundalini. So definitely yes, when you are spiritually awakening, जब आपकी ऊर्जा ज्यादा डिविनिटी की तरफ बढ़ने लगती है, तो आपके पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास हैं वो कट होने शुरू होते हैं, वो आप पूर्ण करते हुए ही आगे बढ़ते हो। अगर आप वो चीजों को पूरा नहीं करोगे तो आपकी कुंडलिनी भी अवेकन नहीं होगी। तो लोगों में जो एक एक्साइटमेंट है ना कि अरे मेरी तो कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, दिस इज एक्चुअली नॉट एन इजी टास्क। This is like you're cutting the karmic cords with a lot of people in the process. In fact, आप अपने अंदर की भी सिस्टम को पूरा हिला दे रहे हो, so in order to grow and come closer to the divinity. Yes. अगर इस लाइफ में मेरे साथ सपोज किसी ने मतलब बहुत बुरा किया है, जो यू वुड हैव नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, सो डू आई हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट जन्म कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा, या ही विल अंडरस्टैंड दैट इस जन्म में उसने मेरे साथ गलत किया था? Okay, इसमें काफी चीजें इंक्लूडेड है। नाउ आई वुड वांट टू से समथिंग टू यू इन दिस। देखो, पहली बात तो ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला इंसान कर्म जो उसने कर्म किए आपके साथ वो गलत है, ठीक है? Expectation is wrong. Keeping a desire is wrong. Okay? I'll tell you the reason why also. उसकी एक रीजन ये होता है कि जो आपके साथ गलत कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, that person has a special purpose in your life to serve, ठीक है? इसीलिए वो आपके साथ गलत करके गया, to teach you some sort of specific, a specific maybe a learning, ठीक है? दूसरा, यू आर अटैच्ड टू दैट पर्सन, और हमारा सबसे ज्यादा हमको हर्ट कौन करता है? जिससे हम अटैच्ड होते हैं, जिससे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एंड लाइफ इन स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू डिटैचमेंट। आप प्यार करो, मोह मत रखो। जहाँ पे आप मोह रखोगे, देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ आई कम्स। हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, हम उसको उसके लिए प्यार नहीं करते हैं, हम उसको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम खुद से प्यार कर रहे हैं। वी लव आवरसेल्व्स मोर, and hence we are loving that person. Okay, it is not because we are loving that person for them. Okay, ये पहली बात है। The second thing is you need to cut the cords then and there, understanding the fact कि ये बंदा आपके लाइफ में आया था क्योंकि आपको ये चीज उसको सिखानी थी। Some people come in our lives to teach us self-respect. Some people come in our lives to give us confidence. Some people come in our life to give us detachment. ठीक है? For various reasons they come into our lives. ठीक है? तो हमको ये चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करनी है, कॉन्टेम्पलेट करना है कि इसका मेरे लाइफ में आने का रीजन क्या था। जब आप उस चीज को समझ जाओ, उस चीज को वहीं पे दी एंड करो। अगर आप उस चीज को बांध के रखोगे, इफ यू रिमेन अटैच टू दिस डिजायर कि इस बंदे को उस कर्म के लिए सजा मिलनी चाहिए, वो उसके कर्म नहीं खराब हो रहे, आप कार्मिकली बंध रहे हो, because you are building expectations in your subconscious, which is forming a knot over here, because your subconscious is storing all the memories. ठीक है? तो आपने कभी 5 जन्म पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि इसको सजा मिलनी चाहिए, वो आपका इस जन्म में भी पूरा नहीं हो पाएगा, because it has formed a knot. Again he will come in your life to punish you, to teach you a lesson. तो आपको अपने तरफ से वो कार्मिक कॉर्ड कट करनी चाहिए। उस बंदे का ना बिगड़े आपका जरूर बिगड़ेगा। यू विल बी सो अटैच्ड टू दैट थॉट ऑफ दैट दिस पर्सन शुड गेट punished of this karma or whatever he has done to me, that you will not be at peace. It is not spoiling that person's peace of mind, it is spoiling your peace of mind. Ultimately what is happening? You will be distressed, you will be sorrowful, right? तो अब आपका क्वेश्चन था कि अगले जन्म में ये उसको सजा मिलेगी या नहीं। हर एक्शन का रिपरकशन तो होता ही। अब वो इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, या इसी मोमेंट में मिले, हमें नहीं पता होता ये। वी आर नॉट द डिसाइडर्स ऑफ दिस। हो सकता है कि उसको सजा मिले भी ना,
Maybe that person even does not get punished, or maybe that person is not even in realization. लेकिन एक चीज होती है which is called the विवेक. विवेक यानी अंतर आत्मा. ठीक है? That knows subconsciously about the action that this person is doing. If you are attached to that karmic debt कि हाँ नहीं मैंने इसके साथ गलत किया है, तो it will not give you peace. The moment you disconnect from that karma कि नहीं मैंने ये किया है because this is the positive reason behind it, आपका वो karmic cord cut हो जाता है. Again, understand duality here, non-duality here. It is all in your subconscious mind. आप किस चीज से अटैच रहते हो, किस चीज से आप प्रोसेस करके डिटैच करते हो. It is all about rationalizing your mind. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ बुरा करते हो और भूल जाते हो. You start giving yourself reason, ओ ठीक है मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया, ऐसा नहीं बोल रही हूँ. But we as humans, we know the differentiation between the right and the wrong. But if the reason for doing wrong to somebody is genuinely rational and is accurate for that particular situation, ठीक है, then you can cut the cords. Otherwise, it will form a subconscious knot. And the karmic cycle will continue. हम नहीं चाहते यार ये बंदे ने मेरे को दिल, मैं तो नहीं चाहती ये बंदे ने मेरा दिल दुखाया, मैं तो दोबारा इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, अगला जन्म तो छोड़ ही दो मुझे. I don't want to meet this person. Why would I want to have this person in my next birth to again go through that cycle of toxicity? And then उसके बाद में उसको सजा मिले नहीं मिले, उसने कुछ अच्छा कर्म किया होगा इस जन्म में, तो अगले जन्म में और फिर से मेरे को दिल दुखा के जाएगा. So why would I want to manifest that? I would only say that if this person has done anything wrong to me, I completely surrender to the divinity and say, please help me in this situation. Whatever the purpose of this person was in my life, let that be served. I surrender to the divinity and cut the cords here. मेरे को ये ना इस जन्म में चाहिए दोबारा, ना अगले जन्म में चाहिए. बट आई थिंक हमारे जनरेशन में अगर कुछ भी होता है ना तो देयर इज दिस वन सेइंग कि सब बोल देते हैं कि कर्मा विल गेट यू बैक. तो आई थिंक लोग बिना सोचे समझे जस्ट हर जगह कर्मा 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 करते हैं. मतलब हर किसी से एनी पर्सन goes through something and they just depend on karma ki matlab karma will do its work. But कर्मा का न्यू हाइप आई थिंक अमंग्स पीपल. लोगों को कर्मा का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एक्चुअल में पता नहीं है कर्मा का कॉन्सेप्ट, एक्चुअली लोगों को नहीं पता है. एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट. इसमें जितनी आप चर्चा करें उतना कम है. मैंने एक इनफैक्ट कोटेशन में भी लिखा था कि आप लोगों को ये मत बोलो कि आपकी कर्म गलत है इसलिए आप सजा पा रहे हो या यू आर सफरिंग. यू आर नॉट अ जज ऑफ एनीबॉडीज सफरिंग्स और लाइफ. आपको नहीं पता है कि बंदे का क्या सफरिंग्स रही होंगी या फिर उसके क्या पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहा होगा. प्लीज ये मत बोलिए कि आपके कर्मा ऐसे रहे होंगे इसीलिए आप इस तरह से सफर कर रहे हो. यू आर नॉट अ जज, यू आर नॉट अ डिसाइडर. इट इज द नेचर, इट इज द प्रकृति, इट इज द पुरुष दैट डिसाइड्स कि आपका कर्म आपके लिए क्या है और क्या रोल अदा कर रहा है इस जन्म में. रादर as a human, as a good human, you should teach the person to detach from that karma. उसको उस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश कराइए, है ना. बिकॉज हम जिस तरह से हम वी आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट आवर एनर्जीज ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी, वी वुड वांट आवर other people surrounding us should also get uplifted. They should also, you know, start gaining that kind of a knowledge. ठीक है. ये बहुत ही गलत है कि जो लोग बोलते हैं ना अरे तुम भुगत रहे हो क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब है. तुम कौन होते हो भाई? Who the hell are you to decide? You are nobody. Even as humans, we have no rights to say that Ravana was wrong. It was Ravana's karma that was wrong. No, it was his soul mission. It was his mission to be Rama's enemy, to teach humanity that evil always loses, right? And the right always wins. It was just the soul mission. And of course, to come closer to Ram, to of course attain moksha, because he knew the only way to, you know, get liberated was through Ram. That was his karma, right? So we are nobody to decide it for others. Yeah. But I think nowadays people are just ready to tell you that तूने ये किया है तो तुम्हारे साथ भी यही होगा. And that is what our generation, I think
if you have a small fight with somebody and the person feels bad, they're just like, you did it to me, and now wait, this will happen to you also. So that is a very common thing that happens. That is a very common thing to have. I know it, and वो बहुत लोगों के बीच में होता है. I understand because when I was going through that phase of like continuous trouble in my life, तो मुझे लोग बोलते थे तुम्हारा तो संचित कर्म खराब रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में तुमको इतनी तकलीफ हो रही है. मैंने कहा यार मैं तो नहीं जानती. I have not seen my past life and I have not traveled so many lives. I might be knowing some part of my past life, but I have not seen the entire, the journey of the soul. तो मैं तो नहीं बोल सकती. I am nobody to judge. तो जो है इसी जन्म में है, उसी चीज को एक्सेप्ट करके चलना है. You have to accept yourself as a whole, the dark side of your life and the light side of your life as well. Without darkness, you would not know what it is to be in the light. Very simple. राइट. वैसे ही कर्मा जो ये लोग जो बोलते हैं कि हाँ तू तो भुगतेगा, तू तो भुगतेगा, तो कितने लोग भुगत रहे हैं भाई? कितने लोग भुगत रहे हैं? नहीं भुगत रहे हैं ना. सब अपने कर्मा के हिसाब से ही भुगतते हैं. सब अपने कर्मा के हिसाब से ही they are accumulating some energies. जरूरी नहीं है कि कोई सामने वाला इंसान किसी स्पेसिफिक कर्मा के लिए भुगतेगा. कुछ और चीज के लिए भुगत सकता है. मे बी अ रॉन्ग डिसीजन के लिए भुगत सकता है बाद में जाके. बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट हिज सोल वांट्स. हो सकता है कि ये बंदी के साथ में ब्रेकअप के बाद में उसको ज्यादा शांति मिले, या इस लड़की का दिल खाने के बाद में ही मीट्स अ बेटर पर्सन, बेटर सोल. He was more in a toxic relationship, or he was in a relationship that that was not serving him good. तो ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है. इट इज नॉट ऑलवेज कि आपने किसी साथ गलत किया इमीडिएटली भगवान ने आके बोल दिया अरे मैं तो तुमको बता दूंगा. ऐसे नहीं होता. या अब मतलब हम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि मतलब हमारे जो करंट लाइफ में हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं दैट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट लाइफ. it is very difficult. Like I said, you can't be a judge of your karmas. You can't. You can't judge for yourself. You can't judge it for others. But it is very important for you to understand what your soul mission is. आप ये जरूर समझ सकते हो कि आपकी एक्चुअल में इस बर्थ में पर्पस क्या है. और वो पर्पस जानने का एक ही तरीका होता है, बिकम पर्पसलेस, बिकम शून्य. चूज अ पर्पस, like Osho says, choose a purpose and become that purpose. Yes. Simple. And बहुत simple. That becomes karma. मतलब इज देयर एनी वे कि हमको हमारी पास्ट लाइफ याद रहे? नहीं होता है ना ऐसा. आई मीन लाइक यू जस्ट हैव अ हिंट कि शायद मैं पास्ट लाइफ में ये थी या मैंने ये किया था. ऐसा होता है? ओके. तंत्र में एक संकष्टी काली स्वरूपा है जो जिसको टाइम ट्रैवल कहा जाता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पेशल सिद्धि जो लोग अपने पास्ट लाइफ में ट्रैवल करना चाहते हैं. And I think nowadays past life regression has come, and then akashic records are there. मैं खुद भी करती हूँ akashic records for my clients. तो ये सारे चीजों के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत अपने past life के बारे में पता चल सकता है. past life की आपको karmic depth का पता चल सकता है. However, हमको इस चीज को समझने की जरूरत है. I personally feel this. ये मेरे साथ में लोग people might deny this. Why do you have to tap into something which you are not supposed to remember? जब आप किसी चीज को याद करते हो ना, आप उससे अटैच्ड हो जाते हो. When you think of something, may that be a good memory or a bad memory, you attach yourself to that. Yes. I'm very lucky, I would say. I don't have a good memory. Okay. This will be absolutely, I mean, like some other spiritual person would say she's so stupid to say something like that she doesn't have a good memory. But I don't have a good memory. Why? Because I'm not attached to anything good or bad in my life. I have seen life as it has come to me. जैसी जिंदगी मेरे को मिली है मैंने वैसे इस चीज को एक्सेप्ट किया है. Good or bad does not matter to me anymore. What I have seen was important for my soul growth and it has already happened. I don't want to remember anything from my past now, good or bad. Of course, I will not forget my mom, my dad, my child, my husband, and all of them. That is not possible for me to forget them. But then the memories which are like sour or good or bad or whatever it is, I am not very attached to them. I'm very neutral about my memory. So why would I like to remember the things which was in my past life? How does it even matter to me? What I would rather focus on is in this birth's karma. And when I am in that process of, detoxifying myself and growing spiritually, getting enlightened, automatically मेरी karmic debts जो है वो खत्म होते जाएंगे. The karmic debts are going to come to an end.
because I'm cleansing myself. For that, I don't need to remember something which is not required, and unnecessarily tapping into subconscious and disturbing your mindset, going mad and cynic about it. No, does not make sense. Uh, can we use meditation or any spiritual practices to, have an impact of that in our past life, or to change something from our past life that we have carried to the current life? Definitely, I mean, like any sort of spiritual practice is going to help you immensely, like to detox. Like I've said, the first process that starts in your body when you are actually becoming enlightened is to annihilate avidya, to Hmm. destroy everything which your body does not require. यानी कि detox करना, और वो detox किस चीज का होता है? हर वो कार्मिक डेट का detox होता है जो आपके बॉडी को जरूरत नहीं है. मे बी इन माई प्रीवियस बर्थ मैंने किसी लड़के से धोखा खाया, ठीक है, Hmm. और वो मेरे दिमाग में रह गया डेथ तक के, वो मैंने इस जन्म में फिर से पाया, ठीक है, आई हैव अगेन बीन थ्रू दैट सेम साइकिल, वो Hmm. कार्मिक डेथ के अंदर में समा गया. नाउ व्हेन आई क्लेंस माय सेल्फ, व्हेन आई क्लेंस एंड आई ब्रेक दैट पैटर्न, ओके, तो क्या होगा, वो कार्मिक साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, एंड देयर आई वुड नॉट वांट अ गुड मेमोरी, आई वुड से आई विल वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट एनर्जी कंप्लीटली. Hmm. The meditation definitely helps. Mantra chanting definitely helps. And when you are like doing your yoga, pranayam practices, what you're doing is you're burning. वो भूटा शक्ति जो होती है, आपकी जो अग्नि की जो शक्ति होती है in your digestion, in the solar plexus, that burns all these karmic debts, all these curses. किसी ने अगर intentionally, unintentionally किसी ने कभी आपको गाली दी होगी, आप उसको कैसे काटोगे? So your Hmm. system has, your body has that power to break all that is negative to your aura, all that is negative. Hmm. वो आप अपने शरीर में एंटर ही नहीं करने दो. If you are like, you should not let it enter your body if you are like, continuously practicing spirituality. But like the past ये जो life हमारे karma, परेशान होते हैं, hindrances होते हैं, relationship problems होते हैं, हाँ, the past life karma can decide the abilities and talents that we are gonna have in this current life. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. अब जो कैरी फॉरवर्ड करते हो, ऑफ कोर्स मैंने अगर पिछले 5 जन्म में साधनाएं करी हैं, तो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली कैरी दैट फॉरवर्ड इन माय बर्थ, बिकॉज लाइक वेदा सेज कि जो सोल है, सोल इज वो नश्वर नहीं है. इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड क्योंकि it does not have a birth, it does not have an end. So basically there is no reincarnation of the soul. It is the body, it is the armor that takes reincarnation or takes a form. ठीक है ना? That shell that forms around that soul is your body, basically. ठीक है, तो coming to your question again, हाँ जी. So whatever you have carried forward or carried in your previous birth, that definitely gets carried forward in this birth in the form of that energy, in that form of your soul. You create an energy around your soul, आपने सपोज पिछले जन्म में माँ काली की भक्ति की है, तो वो जाएगी नहीं आपकी, इस जन्म में भी आप करोगे, इस जन्म में भी वो आपके साथ में रहेगी वो एनर्जी, और that energy will take you towards the bhakti of माँ काली again. हो सकता है you can put another addition to it, like you might add Shiva to माँ काली in this birth, that will again get carried forward in your next birth. तो वो जो एनर्जीज आप अपने अराउंड बना रहे हो, वो कैरी फॉरवर्ड होती जाती है. Whenever the soul goes through that processing, then the soul becomes a Brahman or it merges with the Brahman. तब तक कि ये कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी. मैंने अक्सर एक बहुत कॉमन बात ये सुनी है कि मतलब आप अगर इस लाइफ में इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, in the next life you will be born as a certain animal. So मतलब ऐसा होता है कि अगर इस लाइफ में you are a human and next life में भी आप human हो, या मतलब how does it कि मतलब how are animals born, और animals बेचारे में जानवरों rebirth को का बदनाम कर दिया है, बेचारे जानवरों को बदनाम करके नहीं, रखा हुआ है यार. बट ये इंसान बहुत गलती करे और कॉमन जानवर चीज पैदा है हो. जो मैंने सुनी है कि यूजुअली लोग ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसे काम करोगे तो अगले जन्म में यू विल बी अ सर्टेन एनिमल. ये कहानियां हमारे पुराणों में कही है. ओके, ऐसा आप
जो सुन रहे हो, ये पुराण में भी कहीं mentioned है that you know if you do something wrong you will be roasted and Yeah. you will be tried and oil छिड़का जाएगा और पता नहीं क्या क्या है. मुझे नहीं पता है. Quran की authenticity I have no idea about because I am not a follower of Quran to be honest. I am a follower of Vedas and Vedas में ऐसा कुछ भी mention कहीं पे नहीं है. तो मैं इसकी authenticity नहीं जानती हूँ. Maybe those people who specialize in Quran they can answer this question for you. लेकिन मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है. To be honest, मुझे नहीं पता ये concepts कहाँ से आए हैं. जो आके मुझे बोला है कि मैं पिछले जन्म में कौवा था, मैं जन्म में मैंने इंसान के रूप में जन्म. ठीक है, तो I don't know any such person. I haven't met so far and so forth, so I can't comment on this. To be very honest, मेरा experience ऐसा नहीं कहता है because the time travel that I have done in my life, in my spiritual journey, मैं नहीं जानती बट मुझे तो नहीं लगता मैं किसी जगह जन्म में नागिन थी और मुर्गी थी और मैंने जन्म के रूप में जन्म लिया है. या मेरे को ये भी नहीं पता मैं अगले जन्म में कौन से नस्ल में पैदा होगी. यस, दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप एक बार मोक्ष प्राप्त करने के बाद में, जैसे कहते हैं ना कि दैट मोक्ष मींस दैट यू स्टॉप रीइनकार्नेटेड. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी. हाँ, तो रीबर्थ जो एंड हो जाते हैं. बट अगेन दिस इज अ वेरी this is one such topic जिसके बारे में कोई मोहर नहीं लगा सकता. Like this is the ultimate definition of moksha. Nobody can say that because कोई भी मोक्ष प्राप्त आत्मा आके वापस आपको बताएगा नहीं कि हाँ मेरा मोक्ष ऐसा था दिखने में. ठीक है, there are some people say that मोक्ष प्राप्त करके कुछ समय के लिए ब्रह्मांड में रुक के वैकुंठ में रुक के फिर लोगों का जन्म होता है. तो nobody knows the authenticity or the reality of this fact because अगर हम हमारी स्टोरीज भी देखें, हमारे माइथोलॉजी भी देखें, तो विष्णु भगवान को कहाँ मोक्ष की प्राप्ति है. भगवान has reincarnated, right? Again and again he has reincarnated to serve mankind. It's very simple means that he's taking birth as per his own will and wish. So there are certain souls जो आते हैं धरती पे अपने इच्छा अनुसार ताकि वो लोगों का भला कर सके, कल्याण कर सके. I think it same goes with Hanuman ji because Hanuman ji is चिरंजीवी. तो उनको कहाँ मोक्ष की प्राप्ति. वो भी तो कहीं ना कहीं राम नाम जप कर रहे हैं ना. उन लोगों की भी रक्षा कर रहे हैं जो राम नाम ले रहे हैं. ठीक है ना. So we as mortal humans are not very sure कि like you know हमारे लिए concept of moksha कितना true है. Because nobody knows. And some people say that being completely detached and like completely you know free of all your karmic debts even while you're alive is also symptom of moksha. Okay, जैसे जहाँ पे आपका जो अंडरस्टैंडिंग is like very perfect, उस सिद्धि जब आपको मिल जाती है of like being a perfect true being, तो उस time पे also you've attained moksha. So a lot of people have different concepts and understanding of moksha. Do you believe in life after death? मतलब जैसे hell and heaven का concept होता है जो हम usually पर मतलब सुनते हैं कि आप ऐसे करोगे तो आप heaven में जाओगे and hell में, and heaven में you know you will get whatever you want and hell में you will have to face a lot of punishments और so वो really ऐसे होता है. Hell concept is very much Abrahamic. It is not in our Vedas again. ठीक है. Hell and heaven वाला जो concept है, this is again based on your karmas. Okay, so आप जो बोते हो वही पाते हो जिसको कहा जाता है. So the hell and heaven concept is very much within the earth itself, the kind of life that you live, the way you have done your karmas, that decides your next course of action, and it also depends on like what you face in return. That makes your life, the heaven and the hell. अब heaven की बात अगर करें तो कई लोग विष्णु वैकुंठ की बात करते हैं as like being with the divinity. But Vedanta says that heaven is when you are in that perfect blissful state which is called as Satchit Ananda. In your, you know, that samadhi state where you are merging and you become Brahman yourself. Okay, that is the heaven for me because your body absolutely heals, absolutely becomes, you know, zero, null, void. The energy inside you is like merging. It is like, you know, it's becoming vacuum from inside. You're becoming null completely. So this is how it is. So hell and heaven का जो concept है, again
कई लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बातें की हैं. कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करता है. वैष्णव्स हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, शैविज्म हैज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, शक्तास हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. My understanding of hell and heaven is like very much earthly. जो आप, it is very much dependent on the karma that you're doing. आपकी sufferings है तो वो hell है, आपको सुख है तो वो heaven है. जब आप दोनों से डिटैच्ड हो जाते हो तब भगवान है. I think you have so much of knowledge with you, and we can just go on and on and on. But I think at the end of this episode, आप कुछ जो audience है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने कई लोगों को देखा है जो मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम मैं अपने कार्मिक डेब्ट से कैसे छुटकारा पाऊं. ओके, दिस इज अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क. आप अपने कार्मिक डेब्ट से कभी छुटकारा नहीं पा सकते. जब तक आप जिंदा हो आपको कर्म करने हैं. बट आप एक चीज कर सकते हो कि आप जो कर्म कर रहे हो उसको सरेंडर करो. एवरी डे, हर दिन जो आप काम करते हो, दिन भर में जो भी आप काम कर रहे हो वो भगवान की शरण में रख दो. एट द एंड ऑफ द डे रात में सरेंडर कर दो. बोलना कि भगवान हमने जो भी कर्म किया है वो उसके मालिक आप हो, आपको संभालना है यहाँ से. ठीक है. द बेस्ट थिंग, अनदर थिंग यू कैन डू इज नॉट बी अटैच्ड टू द कर्मा. एंड ये समझ के चलना है आपने दैट यू आर अ नॉन डूअर. आप जो कर रहे हो वो आप एज अ मीडिएटर कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है. एंड दैट इज द क्रिएटर, दैट इज गॉड, दैट इज भगवान. वो आपसे करवा रहा है ये चीजें और आप सब कर रहे हो. आप करते रहो बिना अटैचमेंट पाले. अगर आपको इस जन्म में कर्म आपके धोने हैं, सफरिंग्स करनी है, तो उसको आप रोक नहीं सकते. आप उसको पोस्टपोन भी करने की कोशिश मत करिए. इफ एट ऑल यू पॉसिबल उसको एक्सेप्ट करिए और चीज को खत्म करिए ताकि बाद में आपको सुख की प्राप्ति हो. जो लोगों के कर्म खराब होते हैं ना वो पहले भोग ले तो अच्छी बात होती है, फिर बाद में की जिंदगी अच्छी हो जाती है. ऐसा मैंने सुना है. खैर मैं उम्मीद वही करती हूँ कि मेरे साथ में भी ऐसा ही हो. So, but then yes, you should not be attached to your karma at all. Not even think about like getting rid of your karmic debt because that is not rationally possible. I think खुद का ही नहीं दूसरों का भी, जो हम बोलते हैं ना कि तूने ये किया है तुम्हारे साथ भी यही होगा. I think even that attitude is wrong to have. That attitude is definitely wrong. That is negative. I think the first rule of spirituality is, or rather, there's no rule in spirituality, but ये realization मुझे बहुत बाद में हिट हुआ कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, आप हर इंसान में अच्छा ढूंढते हो कि उसने ये एक्शन किया है तो वो भी अच्छा ही है. भले आपका दिल दुख रहा है लेकिन you still see a concept behind that, you know, word. And you know, अरे यार ये बंदा तो भगवान का दूत था, उसने तो मुझे ये चीज दिखाने के लिए आया था. You start observing the good in people, even if they're negative, even if they're like the most evil and toxic people. You start seeing and you know, you start observing the good in people. But if that good or bad is not good for your energies, then you retract and restrict yourself from merging with that energy. अब अपने आप को दूर हो जाओ, अपना खुद का एक फ्रीक्वेंसी पे काम करो, है ना. कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो उसकी किस्मत है भाई. हम हमारे किस्मत में हमारे अपने कर्मा से जिएंगे. ये है कि मतलब खुद जो कर्म कर रहे हो वो देखो, दूसरे क्या कर रहे हो उससे तुम्हारा कोई मैं तो ना बाबा, मैं तो इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं हूँ. I love my life to the fullest. I believe in liberation, and I definitely believe that liberation can be very much possible while you are alive. Yeah. By being completely detached from everything in your life. You do your karma, I do my work, but I'm not attached to my work. अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं. हम हमारी लाइफ जिएंगे. I'm going, I'm enjoying, I'm earning, I'm spending, I'm like, you know, doing everything possible in my capacity to be a good person and at the same time be liberated and do what is best for my soul. So this brings us to the end of this episode. Thank you so much once again. And to the viewers watching, we'll be back with more interesting videos and share knowledge that I think none of us have. Sure. See you soon. See you. Bye. Bye-bye.